Hello everyone. So today's our topic is the solution of general form of equations. So the general forms are a1x plus b1y plus c1 is equal to 0 and a2x plus b2y plus c2 is equal to 0. These are the general form of equation in two way in the pair of linear equation in two way. So we have to find the value of x and y. So we have to do is firstly just you can take any variable if your it's totally depend on you what to take. If you can take x and you can take y also. I am taking y, so the coefficient of y in this equation is b2 and the coefficient of y in this equation is b1. So we have to do is that we have to multiply the b2 to the first equation and b1 to the second equation. So फर्स्ट इक्वेशन को करना है p2 से एंड सेकंड इक्वेशन को करना है b1 से। तो अपने को क्या मिलेगा, फर्स्ट इक्वेशन लिख रहा हूँ a1 b2x प्लस b1 b2y b1 b2y प्लस c1 b2 is equal to 0 and a2 b1x प्लस b1 b2y plus c1 b c2 b1 is equal to 0. So we have these two linear equation. उनको एक बार के लिए आप छोड़ दो. Now we have these two equations a1 b2x b1 b2y and c1 c2. Now we have to do is the subtraction of the equation first from second. So the sign will be changed. यहाँ पे माइनस आएगा, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस. So we can see that these two number are in the same and they are of opposite sign, so they will cancel out. Now we have is a1 b2 x plus a1 b2 x a1 b2 x minus a2 b1 x. ये एक टर्म है, प्लस करना है क्या आपने को c1 b2 माइनस c2 b1 इज इक्वल टू 0. a1 b2 x माइनस a2 b1 x c1 b2 माइनस c2 b1. So we have to transpose this. So the sign of c1 b2 become minus and c2 b1 become plus. So let me clear that space, just wait. Guys, so this is our equation. Now we have to transpose this c1 b2 minus c2 b1 to RHS. So we have to do two steps in that time. We have to take x as a common from this and transpose this. So let's see, x अपन जब कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा a1 b2 माइनस a2 b1, ये बच गया. मल्टीप्लाई करके देख सकते हो a1 b2 x ये आ गया माइनस a2 b1 x ये भी आ गया. नाउ इक्वल्स टू ये जो इधर प्लस का है तो ये जैसे जाएगा तो ये प्लस का माइनस हो जाएगा, माइनस का प्लस. सो इनका साइन है जो चेंज हो. सो माइनस c1 b2 प्लस c2 b1 ये है अपने पास ना. ये जो चीज़ है x के साथ मल्टीप्लाई में, और इसमें भी एक चीज़ होता है कि अपने को ये जो माइनस का टर्म है पहले नहीं लिखते हैं, बाद में लिखते हैं. सो इसको भी मैं इरेज करता हूँ और पहले पॉजिटिव टर्म लिखते हैं. क्या था, ये जो पॉजिटिव है माइनस होता है और माइनस है जो पॉजिटिव. तो पॉजिटिव टर्म अपन पहले लिखेंगे c2 b1 और इधर पॉजिटिव माइनस हुआ है c1 b2. यहाँ तक रिजल्ट सबको क्लियर है ना. वो आगे x की सिंगल की वैल्यू अगर हम देखें तो ये मल्टीप्लाई में है, नीचे जाएगा डिवाइड में c2 b1 माइनस c1 b2 c2 b1 माइनस c1 b2 ये यहाँ से लिया, और ये जब यहाँ से डिवाइड हो जाएगा यहाँ पे a1 b2
minus a2 b1. So it is the value of x. Yeah, it is the final and the correct value of x. You can put this in the equation and you can find the value of x as well as this. So now the topic of today is the solution of x and y in this linear equation. Now the one more topic related to this is the cross multiplication, which is not in our course, but I want to tell you something about this. So wait, I'm going to teach you. So cross multiplication, we have these two equations, first and second. We have finded the value of x in just x. So the value of x is b1 c2 minus b2 c1 and a1 b2 minus a2 b1. So by putting the value of x, you can also find the y. So now the further process is how to solve the equation by using cross multiplication. So let us see. अपन ने इसको क्या नाम दिया, इस पूरी इक्वेशन को x. सो x, अगर ये पूरी इक्वेशन x है तो अगर अपन इस इक्वेशन को b1 बाय c2 माइनस b2 बाय c1 से डिवाइड कर देते हैं तो क्या होगा, वो कट जाएगा और नीचे 1 बाय a1 b2 माइनस c2 b1. मैं आपको दिखाता हूँ 2 मिनट. जैसे ये दोनों इक्वेशन है, इसके नीचे एक और डिवाइड डाल के b1 c2 माइनस b2 c1 लिखेंगे तो ये कट आउट हो जाएगा. इसके पीछे का भी अगर आपको रीज़न जानना है तो एग्जांपल देते हैं. जैसे 4/8 अपॉन में 2 है तो क्या होगा इसका, ये इसको कितनी बार में बांटेगा, 2 बार में. और 2/8, ये जो 8 है 2 के नीचे ये आ जाएगा नीचे. सो दिस इज द करेक्ट आंसर. यू कैन check it by any source you have. So it is the main concept that is using in this. So if we divide x by b1 c2 minus b2 c1, we get 1 by a1 b2 minus a2 b1. So what we have to do is x divided by, ये जो यहाँ पे तब लिखा हुआ है वो सब आपको यहाँ पे लिखना है. b1 c2 माइनस b2 c1. सो इससे अपने को रिजल्ट क्या मिलेगा, रिजल्ट आएगा अपना, जब ये कट आउट हो जाएगा तो ऊपर क्या बचेगा 1, और 1 के नीचे ये जो भी लिखा हुआ है वो सब अपने को लिखना है. 1 बाय a1 b2 माइनस a2 b1. ये वैल्यू है x की, x डिवाइडेड बाय b1 c2 की, x डिवाइडेड बाय b1 c2 माइनस b2 c1. सो ऐसे ही करके अपन y की भी निकाल सकते हैं. y की वैल्यू को जो अपन पूरा c1 a2 माइनस c2 a1 से डिवाइड करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी. अब सिंपल है, समझना, देखिएगा. तो 1 बाय a1 b2 माइनस a2 b1. तो अपन ऐसा लिख सकते हैं लाइक y डिवाइडेड बाय c1 a2 माइनस c2 a1 इज इक्वल टू 1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1. थोड़ा इसमें लगेगा आपको खोज खोज हुआ होगा, तो मैंने बोला भी है साथ साथ में, तो आप नोट आउट करोगे अगर नोटबुक में तो इट विल बी इजी फॉर यू to understand. So the main purpose of doing this is we get the one relationship that x by b1 c2 minus b2 c1 is equal to a1 by b2 minus a1 b2 minus a2 b1. और वही चीज़ y डिवाइडेड बाय c1 a2 माइनस c2 a1 उसी के बराबर है a1 b2 माइनस a2 b1. सो इससे अपने कंक्लूजन क्या निकलेगा, x डिवाइडेड बाय, इससे डिवाइड किया अपन ने b1 c2 माइनस b2 c1 इज इक्वल टू y डिवाइडेड बाय c1 a2 y डिवाइडेड बाय c1 a2 माइनस c2 a1 इज इक्वल टू किसके बराबर है, दोनों किसके बराबर है, 1 डिवाइडेड बाय
a1 b2 minus a2 b1. So it is the whole purpose of doing that whole, समझ सकते हो, माथा फोड़ी ये सब सिर्फ एक किसी चीज़ के लिए ये सारी माथा फोड़ी थी। सो ये है अपने पास फाइनल रिजल्ट। सो अभी अपन इसको यूज़ करेंगे और एक इक्वेशन सॉल्व कर देखेंगे। ये रिजल्ट आपको इम्पोर्टेंट है, अगर अभी कट हो गया वैसे 10th क्लास में तो, बट आगे कॉम्पिटिशन लेवल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। सो यू हैव टू नोट इट डाउन इन योर नोटबुक इफ यू वांट। सो लेट मी इरेज दिस। So now let us take the example of 3.4 exercise 3.4 in the old book। नहीं में आप लोग देख लेना, उसका अपन थर्ड पार्ट लेते हैं। इक्वेशन लिखते हैं थर्ड पार्ट, 3x minus 5y minus 4, 3x minus 5y minus 4 is equal to 0। एंड एक और इक्वेशन क्या है, 9x plus 9x is equal to 2y minus 7 है। मैं इसको सीधा ट्रांसपोज करके लिख रहा हूँ क्योंकि अपने को सारी चीज़ें एलएचएस में लानी होती है। 9x minus 2y minus 7 is equal to 0। now what we have to do is अपने को वो जो इम्पोर्टेंट रिजल्ट है वो याद रखना। सो द रिजल्ट इज आई हैव टू राइट x जो है उसके नीचे रखना है b1 c2 minus b2 c1, b1 c2 minus b2 c1 is equal to y upon c1 a2। okay, c1 a2y minus c2 a c2 a1, yeah, is equal to 1 by a1 b2 minus a2 b1। okay, so it is our result। so by using this terminology we have to find the answer। so the one thing I want to mention is that a1 is equal to 3 and b1 is equal to minus 5। so you have to find like this, the general form is this, it is first equation and it is second equation। so it is the common sense to know this। so we have to put the values। तो x के नीचे अगर हम वैल्यूज रखें तो b1 क्या है अपने पास, b1 माइनस 5 और c2 माइनस 7। तो माइनस 5 इंटू माइनस 7 क्या होगा, 5 इंटू 7 35 और माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो मैं सीधा पॉजिटिव 35 ले रहा हूँ, 35। फिर क्या है माइनस b2 c1, b2 क्या है अपने पास, b2 is minus 2 and c1 is minus 4। minus 2 into minus 4, 4 into 2 is 8 and minus 2 into minus 4 is 8 because minus minus is plus। so plus 8 is there, but ये जो पूरा आया है b2 c1 ये 8 है और बाहर जो साइन है माइनस का वो इसको माइनस c बना देगा, तो 35 माइनस 8 आएगा ये इसके x के नीचे। नाउ अगर अपन y पे मूव करें, y के नीचे है c1 a2, तो c1 is minus 4 and a2 is 9। तो minus 4 into 9 is, we all know that 4 9s are 36। so एक साइन अगर माइनस का है, अगर दोनों माइनस को होते तो पॉजिटिव हो जाता है, एक माइनस का है तो नेगेटिव हो जाएगा, तो माइनस 36। आगे बढ़ते हैं, माइनस c2 a1, c2 क्या है अपने पास माइनस 7 और a1 है 3, तो माइनस c2 a1 मीन्स 7 3 जा 21 और माइनस लगेगा माइनस 21। माइनस 21 तो इन दो का है और बाहर ये जो माइनस है तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो माइनस 36 प्लस 21। नाउ मूव फॉरवर्ड, 1 बाय a1 b2, a1 इंटू b2, a1 क्या अपने पास 3 एंड b2 इज माइनस 2, सो 1 बाय माइनस 6, a2 व्हाट इज a2 माइनस 5 एंड b1 इज 9। सो 9 5 का 45 एंड माइनस लगेगा 5 वाला, तो माइनस 45 और माइनस 45 तो इस पूरे का है और बाहर जो माइनस है माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो प्लस का 45। नाउ इट इज ऑल easy to find the answer by using this terminology। if you want to find the value of x then put x is equal to 1 by this terminology, and if you want to find y then put y is equal to this terminology। so first we have to find the value of x। तो x divided इसको अपन सॉल्व करेंगे, 35 minus 8 is equal to 27 is equal to अपन रखते हैं 1 by ये जो माइनस 6 और 45 का कैंसिल आउट हो गया अपने पास 39 मिलेगा। सो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा 39 इंटू एक्स बनेगा और ये 27, तो 39x is equal to 27। so we have
x is equal to 27 by 39. So final value of x is 9 by 13. कैसा है 9 by 13? 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 9 का 27 पर ऊपर 9 और 13 3 जा 39. So the value is 9 by 13. You can put the value of x in this equation or you can find the value of y. It is very easy to find the value of y. I can find here. So by simplification of this terminology we find that y के नीचे अपने पास क्या आएगा 9 21 और 9 30 और 1 6 हाँ 9 और 6 15 माइनस का 15 है y के नीचे y डिवाइडेड बाय माइनस 15 इज इक्वल टू 1 बाय इज इक्वल टू में इसी को ही रखना है आपको तो 1 बाय 39. तो क्या बनेगा अपने पास 39y ये इधर जाएगा तो y इसको मल्टीप्लाई में इज इक्वल टू माइनस 15 और y इज इक्वल टू माइनस 15 अपॉन 39 इज इक्वल टू 3 से काटेंगे तो 3 5 जा 15 फिर माइनस 5 और 39 इधर 13 बार में तो फाइनल आंसर ऑफ y इज इक्वल टू माइनस 5 अपॉन 13 एंड x का अगर देखें वो आएगा 9 by 13. So here are the final values. So that's all for today. Now we meet in the next class. Thank you. We can and we will hit.